Hi everyone, a very welcome back to my YouTube channel. In this video I'm going to share about my recent cabin crew interview experience. I have given my interview on 8th of October in Essex Farm Hotel, Delhi. Okay, so it's almost have been maybe so long, maybe 20 days almost. I'm making this video because the festivals I was so occupied, I didn't get the time to make the videos. So now here I am to share my interview experience with you all. So moving forward, I just wanted to inform about some more about my YouTube channels, what I do. So basically I am a influencer and I used to make the videos about my cabin crew interview experience so that you can learn something from my experience. Okay, I'm already working person and I can manage my expenses, and I think that cabin crew is a very good career for the girls like as me who wants to explore the world, who wants to explore the countries, and with the lots of benefits also. To be honest, in the cabin crew job there is a lots of benefits. This is real, right? So basically this time I have given my interview जैसे कि आपको मैंने बताया in Essex Farm Hotel, Delhi. Okay, and that time I was reached at the venue around 10 a.m. अराउंड 10 AM मैं 10 बजे के करीब वहाँ पे पहुँच गई थी एंड देयर वर लॉट्स ऑफ गर्ल्स लाइक अराउंड मे बी 300. ओके, सो 300 गर्ल्स वहाँ पे थी एंड द नंबर विच आई हैव इट्स 78. ज़्यादा लेट नहीं थी, 78 का नंबर मुझे मिल गया था. एंड द गुड पार्ट इज़ इन दिस टाइम द फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड इज़ कंडक्टिंग टुगेदर. मतलब कि पहला और दूसरा राउंड जो था वो एक साथ ही हो रहा था, बट उसके लिए हम लोग अवेयर नहीं थे. सो वी आर ऑलमोस्ट लाइक 2 HRs they were who was conducting the interview. The first one is Rakhi and the second one is I don't know her name. मतलब गोरी सी थी, थोड़ी हेल्दी सी थी एंड उनसे मेरा इंट्रैक्शन फर्स्ट टाइम हुआ था. इन ट्रस्ट में गाइज शी इज़ सो good. Like Rakhi is also very good, but the HR, because she is sharing feedback with all of us, with each and everyone, she is sharing the feedbacks, which is really good part. Like if I'm going for interview and I got rejected in whatever the rounds, in first, second, third, in the last time I got rejected in the 4th round. So if I got some feedback from the HR, so there is a lots of opportunity that I can improve myself. Of course उन्होंने नहीं बताया, स्टिल आई हैव सम क्वेरीज. यार मैंने कहाँ पे लैग किया, मैंने कहाँ पे कुछ ऐसा बोला, या फिर उनको मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगी. सो दिस इज समथिंग विच आई गॉट द फीडबैक फ्रॉम दी लास्ट HR जो मेरा 8th of October को इंटरव्यू हुआ था. तो शी वॉज रियली क्यूट. आई वॉज रिजेक्टेड बेसिकली इन द फर्स्ट सेकेंड राउंड इज कंडक्टिंग टुगेदर. तो बेसिकली आप चाहे कह लो मैं सेकेंड राउंड से या फिर फर्स्ट राउंड से मैं रिजेक्ट हो गई थी. So I have already given my interview. I have already given my maybe twice or thrice times interview with Rakhi. So this time I thought like here is 2 HR, they are conducting first round. Let me explore with another one. So I went for interview and we are 5 girls in a group. Actually जो दूसरी HR थी ना जिनके पास हम इंटरव्यू के लिए गए थे, वो 5 लड़कियों को ही एक बार में बुला रही थी बिकॉज मे बी शी वॉज शेयरिंग द इंटरव्यू. वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करके ही बच्चों को तब वो रिलीज़ कर रही थी. एंड राखी एक बार में 10 लोगों के साथ में इंटरव्यू ले रही थी और एक बार में पूरा एक तो बैच उन्होंने लगातार 3 बैच उन्होंने मतलब जो 3 ग्रुप ऑफ पेयर्स था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, एक भी लड़की नहीं सिलेक्ट करी थी. तो दिस टाइम जब हम दूसरी HR के पास गए थे तो वहाँ पे उन्होंने 5 ऑफ द गर्ल्स लाइक हम 5 लड़कियाँ थी जो एक ग्रुप में थी, हम लोग वहाँ पे गए थे इंटरव्यू के लिए और उसमें से उन्होंने सिर्फ एक लड़की को सिलेक्ट करा था. ओके, एक लड़की को उन्होंने सिलेक्ट करा था. बाय द वे क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छा पूछा था. दिस इज़ माय मिस्टेक कि मैं वहाँ पे फंबल हो गई थी. पता नहीं मुझे किस टाइप का मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा था मुझे बोलने में, बट क्वेश्चन वॉज वेरी ईजी. अगर मैं बोलती तो डेफिनेटली आई विल बी इन द 3rd राउंड, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड तो राउंड एक ही साथ हो रहा था. उन्होंने मेरी CV में से ही क्वेश्चन पूछा था लाइक आई एम वर्किंग एज अ टीम लीडर प्रोफाइल. तो उन्होंने मेरे से ही पूछा था शेयर योर एक्सपीरियंस व्हेन योर कलीग्स इज डिसएग्री विद योर डिसीजन. तो मुझे और ऐसा कई बार हुआ है बिकॉज इन दी कॉर्पोरेट लाइफ आई एम वर्किंग एज अ टीम लीडर. तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आपने कुछ ऑप्शन रखा, आपने अपना कोई ओपिनियन रखा, तो आपका जो कलीग है, आपके जो एग्जीक्यूटिव्स है वो डिसएग्री होते हैं. तो हमको सबको साथ में लेके चलना होता है, हमें उनको समझाना पड़ता है, कभी उनकी बात सुननी पड़ती है. तो मतलब मैंने उनको बोला था
बट मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली आई वॉज रियली शिवरिंग अ लॉट एट दैट टाइम। और पता नहीं क्यों फर्स्ट राउंड में, और जबकि मैं इतनी बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ, फिर भी यार पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। मैं वही दिस टाइम फिर उन्होंने जब मैं डर रही थी तो उसकी वजह से मेरे को बोला नहीं जा रहा था तो प्रोनाउंसिएशन में भी मेरी मिस्टेक हो रही थी, मतलब मेरे से वर्ड्स नहीं निकल रहे थे। तो दिस इज़ द रीज़न आई वॉज रिजेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड। मतलब फर्स्ट सेकेंड तो साथ में होता है, इन द सेकेंड राउंड यू कैन से। तो उसके बाद जो थर्ड राउंड हो रहा था वो था का BMI राउंड। हम 5 लड़कियों में से एक लड़की सेलेक्ट हुई थी। तो आई वुड सजेस्ट द बेसिक थंब रूल इज़, जो HR नोट करती है, उन्होंने मुझे जो फीडबैक दिया पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। द फीडबैक शी गेव मी इज़ यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। क्योंकि मैं ना वर्ड्स को बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं घबरा इतना गई थी। तो आई टेक द फीडबैक पॉजिटिवली एंड आई एम हियर नाउ टू इम्प्रूविंग माई सेल्फ, ओके। एंड द गर्ल हु वॉज सिलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड, उससे क्वेश्चन ये पूछा था कि बिकॉज शी इज़ वर्किंग, तो उसके रिज्यूम में से पूछा था हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव एंड वाई डिड यू लेफ्ट योर लास्ट कंपनी। तो उसने किसी होटल वगैरह में भी काम करा हुआ था, तो उसने उसके बारे में बताया था। और वो साथ में किसी NGO में भी काम कर रही है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए, मतलब जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए। तो उसने उसके बारे में भी अपना शेयर करा था एंड HR वॉज रियली हैप्पी विद द आंसर। तो उसने उसको सिलेक्ट करा था। और जो लड़की बोल रही थी ना, बाय द वे उसके फेस में हर वक्त स्माइल थी। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ, कीप स्माइल ऑन योर फेस। मतलब आपको देख करके किसी बंदे को लगना चाहिए, अगर आप नेगेटिव अपनी गलत भी बोला, आप रिजेक्ट भी हो गए तो भी कोई बात नहीं, बट आपके चेहरे पे नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए यार। आप कैबिन क्रू के लिए जा रहे हो, आप उस रोल को तो देखो, आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो, दिस इज़ वेरी वेरी इस पोजीशन के लिए तो हमारे पास हज़ारों लड़कियाँ आती है, मॉर्निंग में 1000 आती है, 900-800 लड़कियाँ आती है, शाम में सिर्फ 6-5 सेलेक्ट होकर के जाती है। तो इस पोजीशन की वैल्यू करते हुए बहुत ही स्माइल प्लीजिंग कंप्लीट ग्रूम के साथ में अच्छे से पूरा तैयार वैयार हो करके, पूरा अच्छे से बन मेकअप वगैरह सब कुछ करके तभी इंटरव्यू के लिए जाओ, ओके। एंड आई हैव टेकन दी, और जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था उसकी वजह से ही मैं अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ। इंग्लिश वीडियोज़, इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश पॉडकास्ट, और बहुत सारे हमारे ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंग्लिश में वीडियोज़ ही बनाते हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इंग्लिश में अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तो मैं उनको ही सुन के अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर रही हूँ। एंड आई ऑल्सो डिसाइडेड वन मोर थिंग कि मैं अपनी जो भी वीडियोज़ बनाऊँगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंग्लिश के वर्ड्स को चूज़ करूँगी, मतलब हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। और सो दैट हाँ, मेरे से अगर कोई मिस्टेक हो जाता है प्लीज़ आप मुझे करेक्ट करो, because I'm also in my learning phase, okay। And I hope this video finds helpful. Do subscribe my YouTube channel for more updates. अगर कोई भी इशू आता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, I will definitely help you out। के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।